Hello students, welcome to Social Studies class. In our today's class, we are going to continue with chapter 5, Gender and Inequalities. In this chapter, we have studied about the discrimination and the gender role. Gender role is fixed by society. Gender role may vary from society to society. According to the meaning of this term, gender role means a set or pattern of behavior that a woman or man is expected to follow from the birth onwards. From the very childhood, the differentiation can be seen between girls and boys. Often girls are given the toys of pink color, the kitchen set, the dolls, the Barbies, whereas the boys are gifted the toys like guns, cars, bat, and ball. So, this shows the differentiation that the society wants the gender to follow a particular pattern. Also, in the very young age, the girls are taught to help the mother, whereas the boys are taught to do the outside activities, outdoor activities, play sports, go and purchase some things needed from nearby shop. They are given the access to explore new things. The boys are told to be strong, brave, not to cry, whereas girls are told to become soft, polite, and gentle. Boys are made to do many outdoor activities, whereas girls are taught to stay home, take care, help out in the household works. Other than that, the rules for boys and girls are different. So these are all the gender roles which we studied in the previous lecture. Today we are going to study about the gender inequality. In many societies, men and women are not treated differently. Means they are treated equally. So somewhere women and men are treated equally, somewhere they are treated unequally. And unequal treatment based on gender can take different form in different society. So this different treatment based on the gender can form some different society. And as the passage of time, these reforms are coming, positive reforms are coming, where women empowerment can be seen. Where when the girls, the lady, the woman are provided education and given the facility to develop in the life. So still there is a lot of work which has to be done. So some of the matters where we can see the difference are healthcare, education, decision making, and economic freedom. One by one we will cover all these topics. So let's get started. So the first thing is healthcare. In some societies, the health of women is neglected. In many societies, the health of women is ignored. Often women are not given the proper and timely medical care. Women are not provided the medical care and service on time. Sometimes they are not even given enough food. In some parts, in some societies where the family is poor, it is often seen that they are not giving enough food to girl child. As a result, a large number of women die. Hence, such societies there are considerably fewer women than men. और ऐसी सोसाइटी में जहाँ वुमेन के हेल्थ केयर को इग्नोर किया जाता है, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशनल
फूड प्रोवाइड नहीं होता है, इनफ फूड प्रोवाइड नहीं होता है, वहाँ पर वुमेन है, वहाँ पर गर्ल्स है, वो बहुत कम है कंपैरेटिव टू मेन. In India, there are about 933 women every 1000 men. यानी 933 वुमेन है, उसके सामने 1000 मैन है. दिस इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया. ठीक है, 933 वुमेन है और 1000 मैन है. सो वुमेन आर लेस कंपेयर टू मैन. इन इंडियन सोसाइटी गर्ल चिल्ड्रन आर ऑफन निग्लेक्टेड. तो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चिल्ड्रन है, उसे ऑफन इग्नोर किया जाता है बिकॉज पेरेंट्स प्रिफर टू हैव मेल चिल्ड्रन. पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमको बेटे हो. ठीक है, उनको बेटे चाहिए होते हैं. सो ये मेंटालिटी है जो एग्जिस्ट करती है, जिसके वजह से 933 वुमेन के सामने 1000 मैन है. द नंबर ऑफ मैन, द रेशियो ऑफ मैन इज मोर देन वुमेन. सिंस गर्ल children are even killed, okay, sometimes girl children are also killed because they are not wanted. unwanted उन्हें माना जाता था और उन्हें मारा जाता था. ठीक है, उनको किल कर देते थे. एंड दिस वॉज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल यानी कि वुमन, ओके, गर्ल, और इन्फेंटिसाइड यानी इन्फेंट, जब छोटा हो बेबी तभी उसे मार देते थे. इसे कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो वुमेन वर अनवांटेड एंड इंडियन पेरेंट्स, द पेरेंट्स इन इंडिया प्रिफर्ड मेल चिल्ड्रन. द हेल्थ ऑफ वुमन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन. ओके, द हेल्थ ऑफ वुमन, वुमन की हेल्थ है वो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज children are born by women. So if the woman is healthy, the child will also be healthy. Children, including male children, are born by an unhealthy woman are likely to be unhealthy. तो अगर मदर है वो अनहेल्दी है, तो अगर उसको सन हुआ या डॉटर हुआ, बॉय हुआ या गर्ल हुआ, वो भी अनहेल्दी हो सकता है. सो men too are indirectly harming women and not giving proper health care. तो सिर्फ वुमन को ही नहीं, फ्यूचर में जो चाइल्ड है उसको भी हार्म होगा अगर वुमन का ध्यान नहीं रखते हो. तो अगर उसे न्यूट्रिशनल फूड, डेली रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल फूड नहीं देते हो, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वुमन जब भी बर्थ देगी, जब भी एक्सपेक्ट करेगी, whenever she will become mother, she will not deliver a healthy baby, and that baby, that child will also face health problems later in life. Next is education. In some societies, women's education is not considered as important as men's. ठीक है, कोई हमारी सोसाइटी में काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ है या काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ है जिसमें मैन यानी कि मेल चाइल्ड के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और वुमेन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है. डीप डाउन अगर हम देखें तो इसके पीछे उनकी थिंकिंग ये होती है कि वुमेन है, जो गर्ल है, उसे मैरिज करवाना है. She has to go in some other house, whereas the son has to be more powerful and more educated because the son is going to be with us. The son is going to earn in future, whereas the girl has to do the household work. So it is considered less important to teach girl child and to give her good education. So in some society, women's education is not considered important and men's education is considered important. So women are expected to stay home and look after the children and household work. तो घर पे ही उन्हें चूल्हा चौका करना है, उन्हें बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है, ऐसी थिंकिंग होती है. इसलिए उन्हें आगे हाई एजुकेशन नहीं दिया जाता.
Hence, girls are not encouraged to go to school. Even when they are sent to school, they are often married off early and stopped and they have to stop studying. Many girls drop out of school because they are needed at home to help in the house work. काफ़ी लोगों की पढ़ाई, काफ़ी बच्चियों की पढ़ाई, काफ़ी गर्ल्स की पढ़ाई छुड़वाई जाती है कि उन्हें घर का काम करना है, उन्हें घर पे हाउस होल्ड वर्क करना है. Boys and young men get far better opportunities for schooling, higher education, professional training than girls and young women do. तो ये डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं आज भी हम देख सकते हैं. और ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल छुड़वा देना, निकल जाना. तो स्कूल ड्रॉप आउट ये बहुत कॉमन है दलित और ट्राइबल गर्ल्स के लिए. ठीक है, दलित इज अ ट्राइब. ओके, दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लिए. दिस कुड बी पार्टली बिकॉज चिल्ड्रन एंड गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम दिस कम्युनिटीज ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल. ऑल्सो इन मैनी एरियाज where Dalit and tribal population are high, there are very few schools. The students have to travel long distances to reach school. तो जहाँ पर दलित और ऐसे ट्राइबल लोग हैं वहाँ पर बहुत कम स्कूल है और उन्हें बहुत दूर की स्कूल पे जाना पड़ता है और वहाँ पर उन्हें रिडिक्यूल भी किया जाता है, उनका मजाक भी उड़ाते हैं. तो इसीलिए उन्हें अच्छा भी नहीं लगता और दूर जाना पड़ता है. तो गर्ल्स के लिए वो उनके पेरेंट्स अनसेफ मानते हैं, इसीलिए उन्हें पढ़ाई छुड़वा दी जाती है. इन इंडिया वुमेन्स एजुकेशन इज नाउ बीन एनकरेज्ड. अब समय बदला है, काफ़ी जगह पे, काफ़ी सिटीज़ में, विलेजेस में अब वुमेन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लोगों ने समझी है और वुमेन एजुकेशन को भी एनकरेज किया है. हाउएवर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन आर इलिटरेट. पर काफ़ी वुमेन है वो अभी भी इलिटरेट है, यानी पढ़ी हुई नहीं है. ठीक है, एजुकेटेड नहीं है. The percentage of literate women in India is only 53.7. यानी कि डेटा के हिसाब से, जो डेटा अपनी टेक्स्ट बुक में दिया है उस हिसाब से वुमन इंडिया में जो वुमन है, अगर 100 वुमन है तो उसमें से 53 या 54 वुमन एजुकेटेड है और बाकी की अनएजुकेटेड है. द परसेंटेज ऑफ लिटरेट मैन इन इंडिया इज 75.3. जबकि अगर मैन की बात करते हैं तो एवरी 100 मैन में से 76 मैन वो एजुकेटेड हैं. इसका मतलब है ये रेशियो में जो डिफरेंस है उससे साफ पता चलता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गांव में, कुछ कम्युनिटी में, कुछ फैमिलीज में अभी भी डिफरेंस देखा जाता है. However, the situation is much better than it was few centuries ago. काफ़ी सालों पहले जो डिफरेंस था उससे आज की स्थिति फिर भी अच्छी हुई है. People consider it improper to educate women and girls. अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है. राश सुंदरी देवी, probably the first Indian woman to write an autobiography. ठीक है, राश सुंदरी लेडी है, वो पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के जीवन के बारे में लिखा है. डिस्क्राइब्ड द लाइफ, ओन लाइफ. लर्नड टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट. वो कहते हैं कि मैंने पढ़ना और लिखना छुप छुप कर सीखा है. आई हैव लर्न राइटिंग रीडिंग सीक्रेटली. ठीक है, छुप छुप के, स्कूल में नहीं पर छुप छुप के. इन हर बुक कॉल्ड अमर जीवन दिस 19th century बंगाली हाउसवाइफ हैज़ डिस्क्राइब्ड. ये वुमन है वो बंगाली हाउसवाइफ थी, उसने बताया है कि 19th century में कैसे उसने ये सब सीखा. ठीक है, शी डिस्क्राइब्ड हाउ शी लर्न टू रीड बाय मैचिंग letters of the alphabet from her son's exercise book with those in a page from a book which she had secretly hidden away.
यानी अपने बेटे की बुक्स में से छुप छुप कर उसने कैसे रीडिंग सीखा, कैसे उसने अल्फ़ाबेट्स सीखे, ये सारी बातें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। इन 19th सेंचुरी देयर वर सेवरल सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन इंडिया। तो 19th सेंचुरी में काफ़ी चेंजेस आए थे, काफ़ी रिफॉर्म्स आए थे। सोशल रिफॉर्म्स काफ़ी आए थे जिन्होंने एंकरेज किया वुमन के एजुकेशन को। ठीक है, एजुकेशन बूस्ट अप हुआ, वुमन एजुकेशन बूस्टेड अप। अमॉन्ग द रिफॉर्मर्स वॉज पंडिता रामाबाई। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, पंडिता रामाबाई वुमन, शी रिसीव्ड एजुकेशन एट होम एंड बिकेम संस्कृत स्कॉलर। उन्होंने घर पे एजुकेशन उनको मिला और वो एक बहुत ही महान स्कॉलर बनी संस्कृत में। दिस वॉज रेयर अचीवमेंट फॉर अ वुमन ऑफ दोज टाइम। ये बहुत ही रेयर अचीवमेंट था। ठीक है, बहुत ही रेयर यानी कि नॉट ईजीली सीन, ओके, वेरी रेयर। सो दिस वॉज वेरी रेयर अचीवमेंट फॉर वुमन ऑफ दोज टाइम। रामाबाई सेट अप मुक्ति मिशन एट खेड़गांव नियर पुणे। रामाबाई ने मुक्ति मिशन एस्टैब्लिश किया, ठीक है, पुणे में। हियर विडोज एंड पुअर वुमेन्स वर गिवन एजुकेशन। उन्होंने ऐसा मिशन चलाया जिसके अंडर विधवा और गरीब, जो गरीब बहनें थी, गरीब वुमन थी, उन लोगों को एजुकेशन दिया और काफ़ी स्किल्स भी उनको सिखाई। सो शी टॉट वेरियस स्किल्स, शी गेव ट्रेनिंग सो दे कुड अर्न अ लाइवलीहुड, ताकि वो रोज़ी अपनी कमा सके। Some of the skills taught were farming, weaving, carpentry, running a printing press. This mission still exists and carries on its work. ये मिशन है, ये प्रोग्राम है, वो आज दिन तक चालू है। आज दिन तक ये मिशन स्टार्ट है, ओके, एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर आज दिन तक वुमन को अलग अलग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें एजुकेट कराया जाता है। अनदर चैम्पियन ऑफ जेंडर इक्वालिटी वॉज रोकैया शखावत हुसैन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, रोकैया शखावत हुसैन, एजुकेटेड इन उर्दू। ठीक है, दिस वुमन एजुकेटेड इन उर्दू, शी लर्नड Bengali and Hindi with the help of her elder brother and sister. अपने बड़े भाई बहन की मदद से इस वुमन ने, रोकैया ने, उर्दू सीखा, बंगाली सीखा, इंग्लिश सीखा, एजुकेशन मिला उन्हें। एंड लेटर उन्होंने एंकरेज किया, लेटर एंकरेज्ड बाय हस्बैंड, लेटर उनके हस्बैंड ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। शी बिकेम एन ऑथर। ठीक है, वो एक लेखक बन गई, एक ऑथर बन गई, लेखिका बन गई। शी रोट अ स्टोरी कॉल्ड सुल्तानास ड्रीम। उन्होंने एक स्टोरी लिखी, शी रोट अ स्टोरी कॉल्ड सुल्तानास ड्रीम अबाउट एन इमेजिनरी लैंड वेयर द जेंडर रोल्स वर रिवर्स्ड। उन्होंने ऐसी बुक लिखी कि जिसमें जेंडर रोल्स, ठीक है, वो ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, रिवर्स हो जाए। Their men lived in seclusion just as Muslim women of those times lived behind the पर्दा। ठीक है, उसने ऐसा इमेजिनरी स्टोरी लिखी जहाँ पर लड़कों को पर्दा करना पड़े लड़कियों से। ठीक है, एंड वुमन ड्रोव फ्लाइंग कार्स लाइक एयरप्लेन्स विच वर ड्रोन बाय मैन। और वुमन है वहाँ पर एयरप्लेन्स भी चला रही है। ठीक है, जो आज तो वुमेन पायलट्स है, बट उस टाइम पे जब ये बुक लिखी गई थी तब वुमेन पायलट्स नहीं थे, वुमेन एयरक्राफ्ट एक्सेस नहीं करती थी। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि वुमेन है वो एयरप्लेन चलाए। रोकैया शखावत हुसैन ऑल्सो सेटअप शखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। उन्होंने एक स्कूल भी सेटअप करवाया एट भागलपुर। द स्कूल वॉज लेटर शिफ्टेड टू कोलकाता वेयर इट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, पहले भागलपुर में उन्होंने स्कूल बनवाई,
और आज दिन तक भी वो स्कूल है, पर उसे शिफ्ट किया गया है कोलकाता में. सो Shekhawat Memorial Girls High School still exists and works in Kolkata. Next is decision making. ठीक है. In most societies, men enjoy more decision making power than women do. ठीक है. काफ़ी सोसाइटीज़ में, काफ़ी कम्युनिटीज़ में, काफ़ी फैमिलीज़ में जो मैन है वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, बट वुमन को ये राइट नहीं मिलता है. सो इन मोस्ट सोसाइटी मैन एन्जॉय डिसीजन मेकिंग पावर एंड वुमन डज नॉट एन्जॉय. इन फैमिलीज मैन यूजुअली मेक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आज दिन में भी काफ़ी फैमिलीज में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैन लेते हैं. ठीक है. मीन्स द सोसाइटी इज patriarch. Okay, it is, the society is having a philosophy that men has to take decisions. Okay, so usually men also hold most of the important posts in office and government bodies. ठीक है. तो सिर्फ घर की बात नहीं है, काफ़ी ऑफिस में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी देखा गया है कि मैन की जो पोस्ट है वो हाई पोस्ट पे मैन को रखा है. In India, posts are reserved for women in some government bodies to give more decision making power to women. और काफ़ी जगह अभी रिजर्वेशन है. रिजर्वेशन यानी कि एक रिजर्व किया है कि ये पोस्ट पे सिर्फ वुमन को ही लेना है या 1/3 वुमन को लेना है. तो इस वजह से अभी उन्हें थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग पावर भी मिला है. Economic aspect. The possession of money and property makes a person economic self-sufficient. तो जिसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो वो पर्सन है, वो सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक है. विदाउट एनी वरीज पर्सन कैन लिव द लाइफ. तो जो पोसेशन है, जो बिलोंगिंग है मनी का और प्रॉपर्टी का, वो एक पर्सन को इकोनॉमिकली सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सफिशिएंट बनाता है. It also gives the person the power to make his or own decision. Now, the one who has money can take his or her decision independently. So, it gives the person a power to make decision. In many societies, women are considered inferior to men. काफ़ी ऐसी भी सोसाइटी है जहाँ पर मेन को हायर और वुमन को इन्फीरियर यानी कि नीचा मानते हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू डिपेंड ऑन मैन फॉर मनी. ऐसा काफ़ी जगह पर माना जाता है. काफ़ी रिजिड मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि वुमन को मैन पे डिपेंडेंट रहना होगा. यानी वुमन को पैसे चाहिए तो वो खुद नहीं कमा सकती या खुद वो पैसे नहीं रख सकती, उसे हर बार डिपेंड होना पड़ेगा किसी मैन पे. एंड अलाउ मैन टू मेक डिसीजन फॉर देम. और वुमन का सारा डिसीजन, उसकी लाइफ का डिसीजन मैन लेगा. इन सच सोसाइटी देर आर कस्टम्स दैट स्टॉप वुमन फ्रॉम अर्निंग मनी एंड ओइंग प्रॉपर्टी. और इसी नियमों के वजह से, इसी कस्टम्स के वजह से वुमन को रोका जाता है कि वो अपने पाँव पर निर्भर ना हो. वुमन को रोका जाता है कि वो पैसे ना कमाए. उन्हें कैपेबिलिटी होने के बावजूद रोका जाता है कि वो पैसे नहीं कमाए और उनको कोई प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर नहीं होती है. ओनरशिप राइट. ओनरशिप राइट क्या होता है? ओनरशिप यानी कि मालिकी हक. ठीक है. इन सम सोसाइटी इट इज़ कंसिडर्ड इम्प्रॉपर फॉर वुमन टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. तो काफ़ी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि फादर की प्रॉपर्टी है, उस पर वुमन का यानी कि गर्ल का कोई राइट नहीं है. स्पेशली द फैमिलीज लैंड और होम. तो जो उनका घर है या उनके फैमिली में जो ज़मीन उनके पास है,
उस पे कोई भी हक वुमन का नहीं है, सिर्फ सन का हक है, यानी कि जो बेटे हैं उनका ही हक है। फैमिली बिजनेसेस आर ऑल्सो यूजुअली पास्ड ऑन टू सन्स एंड नॉट टू डॉटर्स। और फैमिली बिजनेस है वो भी पास ऑन होता है लड़कों को, लड़कियों को पास ऑन नहीं करते हैं। सच ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा, ऐसे नियम, पुराने नियम आज भी हम देख सकते हैं। बट इन सम फैमिलीज ऑफ केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम मदर टू डॉटर। तो केरला में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ रीजन्स, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मदर की जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर को मिलनी चाहिए। ऑल्सो द लॉ नाउ गिव्स इक्वल राइट टू मैन एंड वुमन इन द मैटर ऑफ इनहेरिटिंग एंड ओइंग प्रॉपर्टी। और अब तो लॉ भी पास हो चुका है, ओके, द लॉ हैज़ पास्ड दैट द डॉटर्स ऑल्सो हैव द इक्वल राइट टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे गर्ल हो या बॉय हो दोनों का इक्वल राइट है। जेंडर बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर्स। इन ऑल फैमिलीज डिफरेंट मेंबर्स डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, सारे फैमिलीज में जो काम होता है वो डिवाइड किया होता है। इन अ सोसाइटी दैट वांट टू कीप मेन इंडिपेंडेंट एंड वुमन डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो ये सोचती है कि वुमन को हमेशा मैन पे डिपेंडेंट रहना होगा, तो ऐसी सोसाइटी क्या करती है, वॉन्ट्स टू कीप वुमन फाइनेंशियली डिपेंड ऑन मैन। द जेंडर रोल ऑफ अ वुमन विद इन द फैमिली इज़ टू डू हाउस वर्क। तो उन्हें हाउस वर्क करना पड़ता है वुमन को, और फैमिली क्या ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली के का ध्यान रखना पड़ता है। शी इज़ डिस्करेज टू वर्क टू अर्न मनी। अगर वो अपने से कुछ करना चाहे, कमाने जाना चाहे, ठीक है, कुछ जॉब या कुछ छोटा मोटा काम ले, तो उसको वो काम करने के लिए डिस्करेज करते हैं। ठीक है, उन्हें मना करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वुमन को हमेशा मैन पे डिपेंडेंट रहना है। When a woman chooses to work or to earn money, her job is considered to be less important than her household duties. अगर वुमन कोई जॉब करती है, ठीक है, एम्बिशियस है, ठीक है, उनके कुछ एम्बिशंस है, तो अक्सर उन्हें उनके एम्बिशंस को, उनके काम को लाइटली लिया जाता है, सीरियसली नहीं लिया जाता है और इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता है। वो समझते हैं कि वुमन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउस होल्ड वर्क, घर के काम, कुकिंग, किचन, ये सभी इम्पॉर्टेंट है, उनकी जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है। शी इज़ अलाउड टू डू जॉब ओनली इफ शी मैनेजेस टू डू इट विदाउट निगलेक्टिंग द हाउस वर्क। यानी उन्हें जॉब करने की परमिशन दी जाती है। परमिशन दी जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, राइट। तो वुमन को अलाउ किया जाता है कि काम करने के लिए, अगर वो सारे घर के काम कर लेती है। अगर उनसे मैनेज नहीं होता है तो उन्हें काम करने में मना नहीं करने देते। सो शी इज़ अलाउड टू डू जॉब इफ़ शी मैनेज एवरीथिंग विदाउट निग्लेक्टिंग हाउस वर्क। इन मैनी फैमिलीज मैन डू अ पार्ट ऑफ द हाउस वर्क। कोई कोई फैमिली में जो हस्बैंड्स होते हैं, जो फादर्स होते हैं, वो भी सपोर्टिव होते हैं, तो वो लोग भी काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं, ठीक है, हेल्प कर देते हैं। हाउएवर डूइंग हाउस वर्क इज़ नॉट कंसिडर्ड कंपल्सरी फॉर मैन। पर वो अपनी इच्छा से हेल्प कर लेते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि वुमन को तो हाउस वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी टू डू ऑल द हाउस वर्क फॉर वुमन, whereas it is not compulsory for men। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, ओके, इट इज़ नॉट अ जेंडर रोल, ओके, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी जेंडर रोल। नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वुमेन्स लेबर। नॉन रिकॉग्नाइजेशन यानी कि उनकी काम को नोटिस नहीं किया जाता, तो वुमन के काम को नोटिस नहीं करते हैं। Often the work done by women is considered to be of no value।
वो मानते हैं कि वुमन जो काम करता है वो तो फालतू है, वुमन जो काम करती है वो फालतू है, बिकॉज इट डज नॉट फैच मनी, क्योंकि उसमें से हमें कुछ अर्निंग नहीं होती है, पैसे नहीं मिलते हैं. इन द हाउस वुमन आर एक्सपेक्टेड टू कुक एंड क्लीन, शॉप फॉर ग्रॉसरी, केयर फॉर चिल्ड्रन एंड सो ऑन. तो घर में जो भी काम होता है, ठीक है, सब मैनेज करना पड़ता है वुमन को. घर में बहुत काम होता है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता है, पर उस काम की कोई वैल्यू या रिकॉग्निशन नहीं करता है. ठीक है, ये काम को बहुत वो समझते हैं कि ये तो नेचुरल काम है जो उन्हें करना है, दिस इज़ द नेचुरल ड्यूटी ऑफ वुमन. तो उसमें वुमन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वुमन खाना बनाए, ठीक है, सब्जी काटना, खाना बनाना, फिर दूसरा कबर्ड्स वगैरह बनाना, क्लीनिंग करना, स्वीपिंग करना, वेजिटेबल्स ले आना, ग्रॉसरीज ले आना, बच्चों का ध्यान रखना, घर में दूसरे परिवार वालों का ध्यान रखना, ठीक है, सारी चीज़ें ढंग से रखना, ठीक है, ये सारे काम जो है वो वुमन को करना पड़ता है. सम वुमन इन विलेज ऑल्सो हैव टू फैच वाटर एंड फायरवुड. तो ये तो अर्बन सिटीज़ में हमें पानी के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, रूरल एरियाज़ में, रूरल रीजन्स में, विलेजेस में, वहाँ पर पानी लेने के लिए उन्हें पानी भरने दूर दूर तक जाना पड़ता है. ठीक है, दे हैव टू फैच वाटर फ्रॉम वेल्स एंड दे हैव टू गैदर द फायरवुड. तो उन्हें फायर के लिए फायरवुड भी लेना पड़ता है, ठीक है, कुक करने के लिए. सो ये भी एडिशनल काम उन्हें करना पड़ता है. Women are often expected to help in families' economic activities, which could be working in the fields, grazing animals, selling goods for running the family business. औरतों और वुमन की हेल्प भी ली जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. कैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि उन्हें कहा जाता है कि आप कैटल को ग्रेज करवाने ले जाओ, ठीक है. दे आर टोल्ड टू टेक द एनिमल्स so that animals can eat the grass. Okay, they are told to sell goods, running the business, family business, and selling the goods like milk and everything that is received from animals. All this work is very important for families well-being and needs as much labor as the work men do, but this work is not regarded as the work at all. पर घर के कामों को या एडिशनल हेल्प को वो कंसिडर ही नहीं करते हैं, उन्हें गिनते भी नहीं हैं. ठीक है, क्यों उनको काम नहीं मानते? क्योंकि वो पैसे उनसे नहीं मिलते हैं. ठीक है, ये काम करने से फैमिली में पैसे इनकम नहीं होती है. द मनी सेव्ड बाय द फैमिली बिकॉज ऑफ दिस वर्क इज सेल्डम टेकन इनटू अकाउंट. इन मोस्ट सोसाइटीज वुमेन्स लेबर इज नाउ गिवन सम इम्पॉर्टेंट. कोई सोसाइटी में, ठीक है, वुमन लेबर को, यानी कि वुमन जो काम करती है घर का या उनके जो सेक्रीफाइस होते हैं उनको वैल्यू मिलता है. ठीक है, इन इंडिया वुमन नाउ हैव द लीगल राइट टू वर्क एंड राइट टू ऑन फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क. अभी इंडिया में ऐसा राइट है कि वो राइट टू वर्क, यानी अगर वो काम करना चाहे, ठीक है, तो वो काम भी कर सकती है और उससे प्रॉपर अमाउंट में उसे वेजेस भी मिलते हैं. The government runs various schemes to help women become economically independent. वुमन है वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, उसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं. गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होते हैं जिसमें वुमन को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, और या तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेके कुछ काम शुरू कर सकते हैं. वुमेन्स राइट, यानी कि एक वुमन के क्या अधिकार है, ठीक है, एक औरत के क्या अधिकार है. इन इंडिया वुमन नाउ हैव इक्वल राइट एज मैन. तो हर जगह पर वुमन का अधिकार मैन जितना ही है. दे बोथ आर हैविंग, मैन एंड वुमन बोथ आर हैविंग इक्वल राइट, एट लीस्ट फॉर्मली. पर ये फॉर्मली है, इनफॉर्मली अभी भी काफ़ी डिफरेंस है. देर आर ऑल्सो स्पेशल लॉज टू प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर. ऐसे स्पेशल लॉज है जो जिसके वजह से वुमन को प्रोटेक्शन मिलता है
मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट से। ऐसे भी लॉज है जो जिसके वजह से अगर कोई दहेज मांग रहा है तो उसे भी पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। देयर आर लॉज ऑल्सो टू पनिश दोज हु डिमांड डॉरी। डॉरी क्या होता है? डॉरी यानी कि दहेज, ठीक है। पहले क्या होता था कि व्हेन अ गर्ल यूज्ड टू मैरी सम बॉय, ओके, व्हेन अ वुमन यूज्ड टू मैरी अ मैन, द मैन वर आस्किंग फॉर मनी, फॉर गोल्ड, फॉर थिंग्स, ठीक है। तो जो बॉय होता है, जो ग्रूम साइड होता है, वो ब्राइड साइड से कुछ ना कुछ पैसे और दहेज मांगते थे। पर अभी जो भी दहेज मांगते हैं, डाउरी मांगते हैं, उन्हें पनिशमेंट भी हो सकती है। ऑल दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैंपेन्स बाय पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर वुमेन्स वेलफेयर। तो वुमन के वेलफेयर के लिए, वुमन के बेटरमेंट के लिए काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो जिसके वजह से आज इतने अच्छे लॉज हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस है, ये संस्था है, वो क्या करती है? अवेयरनेस फैलाती है। दे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिफ़िकल्टीज दैट वुमन फेस। वुमन को आज दिन तक भी बहुत परेशानी होती है। दे ड्रॉ अटेंशन टू वुमेन्स प्रॉब्लम्स बाय राइटिंग आर्टिकल्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स लिखते हैं, जिसके वजह से लोगों में अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस फैलती है। और पब्लिक रैली में भी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलते हैं। दे ऑल्सो गिव एडवाइस, इंफॉर्मेशन एंड समटाइम्स मनी एंड लीगल सपोर्ट टू वुमेन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन के भले के लिए काम करती है, बेटरमेंट के लिए काम करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें सलाह देती है, इंफॉर्मेशन देती है अपने राइट्स के बारे में, और कभी कभी उन्हें पैसों की मदद भी करती है और लीगल सपोर्ट भी देती है। दिस एनेबल्स मैनी वुमन टू नो एंड एक्सरसाइज देयर राइट। इसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, ऐसी संस्था और ऐसे ट्रस्ट के वजह से वुमन को अपने राइट्स के बारे में पता चलता है। और वो राइट्स वो कैसे अपने अधिकार जो है वो अपने अधिकार के हिसाब से वो एक्सरसाइज करेगी, एक्सरसाइज द लॉ, यानी कि कैसे उसके हिसाब से अपना बेनिफिट लेगी, वो भी उनको ऑर्गेनाइजेशन बताती है। ओके, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी काफ़ी मदद करती है ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर, ओके, एंड if you have any doubts you can call me in the given time.